الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے عملی نمونے اور جن کی طرف اتارے گئے نزول قرآن کے نتیجے میں آج ہمیں راہ نجات ملی ہے، اور راہ نجات ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے، اور وہی راہ نجات ہے جو قرآن کی شکل میں میرے اور آپ کے گھروں میں محفوظ ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ قرآن مجید ہے جس کا ہم ہر رمضان کے مہینے میں اعادہ کرتے ہیں، جس کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف پیرائے میں اس کی گفتگو کی جاتی ہے۔ کبھی اس کو ناظرہ کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، کہیں اس کو اس کے تراجم کے حساب سے اس کی مطلب جو ہے تراجم پڑھے جاتے ہیں، اور کہیں اس کے تفاسیر کیے جاتے ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے اس کے مختلف مدوں کو لے کر، مختلف حصوں کو لے کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، کہیں خلاصہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے مطلب جو ہے تفصیلات آتے ہیں۔ بہرحال قرآن کا سفر اس رمضان کے مہینے میں بڑی تیز گامی کے ساتھ امت مسلمہ میں سراعت کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ قرآن مجید ہے جو کبھی مطلب جو ہے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کتاب ہمیشہ جب پڑھو ہر دور کے اندر نئی رہنمائی عطا کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو سیدھا راہ دکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھی کی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ وہ اہم پیغام ہے جس کے تحت اس قرآن مجید کو مجھے اور آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا، اور یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے میں اور آپ اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک مطلب جو ہے معنی مطالب کو الگ الگ انداز میں اس کو پڑھنے کا مطالعہ کرتے ہیں، جسی کے نتیجے ہی میں الگ الگ در کھلتے ہیں، الگ الگ مطلب جو ہے عقل کے مطلب جو ہے وہ در مجھے اور آپ کو نئی راہیں مطلب جو ہے کھول کر سامنے لے آتی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اعتماد بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے، اور پھر عقیدے میں مطلب جو ہے وہ مضبوطی لاحق ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر وہ نمونے مطلب جو ہے منظر عام پر آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے اس قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا رواج مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا۔ سامعین اکرام، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس سے تعلق اور ربط قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم سب کا ماہ رمضان میں قرآن سے غیر معمولی تعلق مطلوب ہے۔ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی طور پر قرآن پڑھنے کا اہتمام تو ہمیشہ ہر جگہ ہر لمحے اور مطلب جو ہے ہر گھر میں مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے الگ الگ پیرائے میں دیکھتے تو ہیں، مگر مطلب جو ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مطلب جو ہے جب اختتام قرآن کا سفر مطلب جو ہے اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو گیا، تو وہاں یہ سوچنے کا مقام ہے، وہاں عزم کرنے کا مقام ہے، وہاں اپنا محاسبہ کرنے کا مقام ہے کہ آیا جس کا مطالعہ کیا گیا ہے، جس کے سلسلے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں، جس کے تعلق سے فکر مندی کے ساتھ ہما حقہ مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے جفاکشی کے ساتھ جس میں شرکت کر کے ہم نے اس کو سماعتوں کے ذریعے سے اپنے دل تک پہنچایا ہے، آخر یہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کے تحت مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو قرآن مجید سے مجھے اور آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، افسوس صد افسوس، اس مطلب جو ہے امت مسلمہ کے اس معاشرے کے اندر قرآن سے ہم نے مطالبے کے اہم ترین اسباق کو فراموش کر دیا ہے۔ دین کا فہم نہ ہونے اور غلط تصور دین کی طرف سے ہم نے اپنے مقاصد سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی کا مطالبہ قرآن ہم سے کرتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن
कुरान बिलाशुबा एक इनकलाबी किताब है। जिस शख्स का इससे ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, इस शख्स की ज़िंदगी तब्दील हो जाने में कोई शक नहीं किया जा सकता। इसका ज़ाहिर व बातिन कुरान का आईना होता है। इसके अखलाक व किरदार कुरान का नमूना साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि इस कुरान के अंदर हम वैसा ही फैज़ उठाएं जैसा कि इसका हक है। यह है वो शर्त अव्वलीन जिसके तहत ही इंसानों के अंदर तब्दीली वाक़ हो सकती है। सामीन इकराम, कुरान के साथ सबसे बड़ा सितम ज़रफ़ी यही है कि इसके साथ धो धो कर पिलाने, तावीज़ मतलब जो है बनाकर मतलब जो है इसको रवैया इख्तियार कर लेने, या रहमतों का समंदर ठांटे मारता मतलब जो है हमारी तरफ आगे बढ़ता है, हम इसके हिज्जों ही में अटके रह जाते हैं, या सिर्फ इसके मतलब जो है सिर्फ मानी मतालिब को सिर्फ मतलब जो है एक सरसरी नज़रों से इसे देख कर मतलब जो है गुजर कर या पढ़ कर निकल जाते हैं। क्योंकि मतलब जो है रमज़ान का महीना ये बरकतों का महीना है, इस वजह से एज अ रूटीन मतलब जो इसको पढ़ लेते हैं, मगर इसके ज़रिए से अपने अंदर जो तब्दीली मतलब पैदा होनी चाहिए उसकी तरफ ना गौर व फिक्र है, ना तदब्बर है, ना सोचो विचार है, ना मुहासिबा है। सामने इकराम, कुरान मजीद रहमतों का समंदर है जो ठाटे मारता हुआ हमारी तरफ मतलब जो है आगे बढ़ता है। सामने इकराम, हमारी कम नजरी के हमने इससे एक बूंद भी फैजा अगर हासिल न किया है तो फिर मतलब जो है हम सिवाय पछतावे के कुछ ना हासिल कर सकेंगे। हमारी कोताही, हमारी कम इल्मी, हमारी अक्ली, हमारी किल्लत तदब्बर की वजह से कुरान के साथ हमारा रवैया रटने बगैर जाने बुझे एक एक खुर से 10-10 नेकियां लेने की मतलब जो है चाह तो बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब इरादा भी बहुत किया जाता है, जबकि कुरान के मीज़ान को न तादाद की इखलास करदा दरकार है, महज ज़बानी नहीं बल्कि अमली तब्दीली दरकार है, जिंदगी का जमूद नहीं, कुरान से हासिल होने वाली हरकत मतलब जो है दरकार है। सामिन इकराम, हम रमज़ान में देखते हैं कि उम्मत की एक बड़ी तादाद कुरान के कई कई दौर करने में मसरूफ़ है, खुसूसन ख़वातीन में ये मुकाबले की मतलब जो है शक्ल इख्तियार कर लेती है। जिक्र व अस्कार की महफिलें सजाई जाती हैं, हाथ में तस्बीह और लब पर जिक्र का वर्द हमारा चलता रहता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में कोई तब्दीली माशरे के अंदर देखी नहीं जाती। ये कैसे मुमकिन है कि ज़बान खुदा की किबरियाई बयान करती है, अमली ज़िंदगी में खुदा की मर्जी कहे मतलब जो है नज़र ही न आए, जबकि इस्लाम के तमाम अरकान हमसे अमली ज़िंदगी के तब्दीली का मुतालिबा करते हैं। अमली ज़िंदगी में तब्दीली तभी वाक़ई हो सकती है जब हम तक़वे की सिफत पैदा कर सके। सामिन इकराम, ये रमज़ान का मकसूद ही वही है कि कुरान से रहनुमाई के उसूल हासिल किए और तक़वे की सिफत हासिल करें, जबकि कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज कर दिए गए थे, उम्मीद है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये वही सिफत है जिसे तक़वे के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, ये तक़वा मतलब जो है दरअसल इंसानी जिंदगी की वो मग़ज़ है जिसके तहत ही आदमी इस राह निजात की तरफ आगे बढ़ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा तक़वे की तलक़ीन की है और तक़वे की दुआ फरमाई है। अल्लाह ने इंसानों के उरूज ज़वाल का पैमाना इसी तक़वे को बनाया है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर करो तुम किसी सुर्ख या सयाह फाम से बेहतर नहीं हो, हत्ता ये कि इल्ला ये कि इस पर तक़वे की बरतरी हो। यानी यहाँ वाज़ेह तौर पे बताया गया कि इंसानों के दरमियान में कोई किसी से आगे बड़ा छोटा नहीं है, अगर बड़ा छोटा है तो वह तक़वे की बुनियाद पर है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, तक़वा, इफ़्फ़त और तवंगरी का सवाल करता हूँ। ये है वो तक़वे की सिफत जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे। सामिन इकराम, इस वक्त इस मरहले में जहाँ हम मतलब जो है अपने कुरान के इन मतलब जो है मालूमाती जो क्लासेस के ज़रिए से हमने एक जगह जमा होकर इस पर गौर फिक्र का मामला किया, तो इस वक्त मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है, आखिर मैं मतलब जो है इस क्या पोजीशन पे हूँ, और मेरा मतलब जो है अहदनामा अल्लाह के साथ क्या है, इस कुरान के साथ क्या है, इसके मालूमात के साथ क्या है। क्या ये मतलब जो है कोई कहानियां थी जिसको मैंने सुनकर मतलब जो है इससे मतलब जो है खत्म कर दिया, या फिर मतलब जो है ये सिर्फ मतलब जो है रट्टा मारने वाली किताब थी जिसको या तो मतलब जो है अपने तराजिम के जरिए से हमने रट्टा मार लिया, या नहीं है तो फिर इसको मतलब जो है इसके मतन के साथ हमने
نے اس کو عربی زبان میں پڑھ کر اس کا خاتمہ کر لیا. آخر مطلب جو ہے کتاب کیا چیز ہے, ہم اتنے مطلب جو ہے وقت لگا کر پورا مہینہ اس راہ میں لگا کر اپنا پورا وقت مطلب جو ہے اس میں لگا کر ہم نے مطلب جو ہے کیا سنا اور اس کے ذریعے سے ہم نے کیا حاصل کیا, یہ وہ چیز ہے جو آج مطلب جو ہے سوچنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام, دراصل اسلام, ایمان و اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں مومن اور مسلم ہوں اور بس پھر وہ چاہے جو چاہے کرے. وہ مومن و مسلم نہیں ہے. مومن اور مسلم دو نام نہیں ہیں بلکہ رکھ لیے جائیں, بلکہ یہ کرنے کے کام ہے. سامعین کرام, ایمان مطلب جو ہے لانا پڑتا ہے, اسلام لانا ہوتا ہے. بار بار ہر لمحہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ اسلام لاؤ. اس قرآن مجید کو ہم نے پڑھا جہاں بار بار مطلب جو ہے تلقین حق کی گئی کہ ایمان, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. بار بار اس کا تقاضا کیا گیا. اسلام لانے والوں کو قدم قدم پر فیصلے کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, کیا کروں کہ میں اسلام لانے والے مسلموں میں شمار کیا جاؤں, اور کیا کروں کہ میرا اسلام مطلب جو ہے محفوظ رہے. ہر لمحہ یہ فکر, یہ اضطراب, یہ فیصلہ, یہ انتخاب, یہ اقدام, یہ اجتناب اور یہ مطلب جو ہے تر و اختیار ناگزیر ہے. سامعین اکرام, اسلام پر باقی رہنے اور تمام اسلام سے بچنے کے لیے اور ہر آنے والی گھڑی میں یا آپ اللہ کے اسلام کے رخ پر بڑھ رہے ہیں یا کفر و نفاق کے رخ پر بڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ زندگی نام ہے مسلسل حرکت کا, یا اجتناب کا, یا ترک و اختیار کا, یا رد یا قبول کا, اور یہی عملی فیصلے طے کرتے ہیں کہ ہم اسلام لا رہے ہیں یا غیر اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. سامعین اکرام, سوچئے کہیں ہمارے اندر نفاق کا روگ یعنی دو رخاپن, سامنے تو مطلب جو ہے ایمان 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 اسلام کی بات کرتے ہیں اور پیچھے اپنی مصروفیات زندگی کے اندر ہم اس سے بالکل الگ ہے. کیا یہ نفاق کا رویہ ہمارے اندر ایمان اور اسلام کے خلاف خاموشی الغار تو نہیں کر رہا ہے؟ یہ وقت ہے اس وقت سوچنے کا. آپ ہمارے اندر فکر و عمل میں کوئی ایسی برائی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے, پھر کوشش میں لگ جائیں کہ ہمارا مطلب جو ہے ایمان نفاق کے روگ سے محفوظ ہے یا نہیں ہے. سامعین اکرام, نفاق یعنی دو رخاپن ایمان کا بدترین دشمن ہے. دبے پاؤں آتا ہے, نہایت عیاری سے وار کرتا ہے, آدمی کو احساس نہیں ہوتا مگر وہ اس ظالم کو شکار کر دیتا ہے. فکر و عمل کے بہت سارے پہلوؤں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, لیکن زبان سے نفاق کی برائی کرتے نہیں تکتا. اس چھپے دشمن کے حملوں کے اثرات کا بصیرت کی خوردبینی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے ذات سے, اپنے خاندان سے, وہ معاشرے پر اور فکر و تشویش کی نگاہ اس وقت ڈالنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب بہت سے منافقانہ خصلتوں کو لاپرواہی سے برداشت کر رہے ہیں, بہت سی برائیوں کو کا ساتھ سمجھوتہ کر رکھا ہے اور بہت سی برائیوں کو تعویلوں اور بہاونوں سے ناخوب کی فہرست میں درج کر کے بتدریج خوب بنا لیا ہے. قول و عمل کا تضاد ہمارے اندر پیدا ہے. نفاق کی یہ ابھری ہوئی بیماری ہے جو برائیوں پر اکسانا, برائیوں کو رواج دینا, بھلائیوں کی راہ مارنا منافقین کا محبوب مشغلہ ہے. سامعین کرام, ان کے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوتے ہیں. یہ بعض مطلب جو ہے وہ قدورت ایک دوسرے کے خلاف نفرت و تحقیر کے جذبات کی روگی مطلب جو ہے ہوتے ہیں. بڑھ بڑھ کر دعوے کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں, مگر وقت آنے پر دین کی راہ میں کوئی خرچ کرنے کے لیے ان کا دل مطلب جو ہے بیٹھے جاتا ہے. کوئی پھانس برداشت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے, اور اسی وجہ سے وہ ہمت حوصلہ ایسے رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. یہ خدا اور رسول کا نام تو لیتے ہیں لیکن تعلقات اور مالی معاملات میں خاص طور پر یہ اپنے نفس و خواہشات کے بندے ہوتے ہیں. یہ دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دنیاوی امور میں بدترین دنیا داروں سے بہت آگے ہوتے ہیں. اس کی مثال مطلب جو ہے ہمارے سامنے مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ان خرابیوں کی روشنی کی طرف مطلب جو ہے ڈالی گئی ہے. ہم نے ان کے مطلب جو ہے حاصل قرآن کے خلاصوں میں دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایسی منافقین کی صفات کو واضح طور پر ہمارے سامنے لے آیا. بے لاگ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنا بھی, اپنے خاندان کا بھی, اپنے مسلمان معاشرے کا بھی. ہم مطلب جو ہے کس مقام پر کھڑے ہیں, اور پھر سوچئے کہ منافقین کے اعمال و اخلاق پر تبصرہ کرنے والی آیات ہم سے مطلب جو ہے کیا خطاب کر رہی ہیں یا خطاب نہیں
کر رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے ہر حصے کا خود کو مخاطب بنائے بغیر ہم مطلب جو ہے قرآن پڑھیں گے نہ مطلب جو ہے قرآن کے ساتھ انصاف کر سکیں گے، نہ اپنے ساتھ اور قرآن میں غور و تدبر کا یہ انداز ہم کو مطلب جو ہے قرآن سے دور کر سکتا ہے، قریب نہیں کر سکتا. اور ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم قرآن فہمی کی چاشنی ہرگز نہیں پا سکتے. سامعین اکرام، اس کے لیے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اس وقت مطلب جو ہے اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے. آخر مطلب جو ہے یہ جو کام میں لے کر اٹھی اور اس قرآن مجید کو اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنا وقت لگا کر، اپنا شوق لگا کر، اپنی محنت لگا کر، اپنی مصروفیات سے مطلب جو ہے وقت نکال کر اس کے مطلب جو ہے اس میں ہمیں شریک رہی، تو میرا مطلب جو ہے اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، اس کے ساتھ مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے معاملہ ہے. کیا میرا معاملہ منافقانہ سا رویہ ہے کہ میں مطلب جو ہے یہاں بیٹھ کے سنتی تو ہوں مگر اپنی مصروفیات زندگی کے اندر میں نے اس کو بالکل مطلب جو ہے چھوڑ دیا ہے اور اس کو پیچھے ڈال دیا ہے. کیا ایسا ہی معاملہ ہے جو اس قرآن مجید کے ساتھ میرا اور آپ کا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو اس وقت تمام قرآن مجید کے دو طریقے سے ہم نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے. ایک ہے وہ جو مطلب جو ہے خلاصوں کی شکل میں مکمل کیا، ایک ہے وہ جو احکام الہی مطلب جو ہے کہ مختلف مدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کا اختتام کیا. سامعین اکرام، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اسے ہدایت پانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ہر ایک آیت کو اپنے سے متعلق سمجھے، ہر آیت کا مخاطب اپنی ذات کو مطلب جو ہے بنائے اور تصور کرے کہ اللہ نے یہ آیت میرے لیے ہی نازل کی ہے، اور دوسروں پر منطبق کرنے کا سکون مطلب جو ہے محسوس کرنے کی عادت چھوڑ دے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہمیشہ مطلب جو ہے ہم اس کا مطالعہ کرنے کے درمیان جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے، کہاں مطلب جو ہے یہود و نصارہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے مشرکین کا مطلب جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، تو جو کم عقل رکھنے والے لوگ ہیں ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تمام آیتیں ان کے لیے ہیں، وہ تمام احکامات ان کے لیے ہیں، اور ان پر مطلب جو ہے شان نزول انہیں کے حساب سے مطلب نازل ہوا تھا. اس وجہ سے میرے اور ہم سب کے لیے یہ مطلب جو ہے راہ نجات نہیں ہے. سامعین اکرام، یہ آیتیں دنیا کے آخری مطلب جو ہے اختتام تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ایک رہنمائی اصول لے کر آئی ہوئی ہے، اور وہ اصول اس وقت بھی تھا جب اس کا نزول ہوا تھا، جہاں حالات مطلب جو ہے اس وقت مشرکین یا یہود و نصارہ یا پھر مطلب جو ہے وہاں کے مطلب جو ہے مشرکین کے ساتھ معاملہ تھا. یہ وہی آیتیں مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مطلب جو ہے سمجھ کر مطلب جو ہے اپنے سے مخاطب مطلب جو ہے سمجھ کر اس کو پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر یہ میرے اور آپ کے لیے رہنما بن کر مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہے. سامعین اکرام، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے دیے ہوئے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے لیے ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ مطلب جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کہیں رذائل اخلاق اور کہیں مطلب جو ہے اہل جہنم کے کرتوت مطلب جو ہے اسی قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے. اللہ سے توبہ کرے کہ ان کی پناہ ڈھونڈے، باریک بینی سے اپنا بے لاگ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس قسم کا کوئی بھی داغ اور دھبا اپنے دامن ایمان اور اسلام میں پائیں تو اس کو صاف کرنے میں لگ جانے کی ضرورت ہے، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی عادت ڈالے کہ دنیا والوں کو تو آدمی ہیلے اور تحویلوں سے مطمئن کر سکتا ہے، کہیں اہل و کفر و شرک کے انجام بد اور اس کے مطلب جو ہے عذابات کا لرزہ خیز نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے، ایسے موقع پر آپ کا اور ہمارا دل مطلب جو ہے لرز جانا چاہیے، آنکھیں اشکبار ہو جانی چاہیے، چہرے پر خدا کی حیت اور جلال کے آثار نمایاں ہو جانے چاہیے، اور ہم اپنے مطلب جو ہے رب کے حضور گڑ گڑا کر پروردگار کو تو اس انجام سے مجھے محفوظ رکھ، اس کے لیے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. کہیں مومنین صادقین کے نیک اعمال اور آخرت کی ابدی اور بے مثال نعمتوں اور آسائشوں کا ذکر اس قرآن مجید میں آتا ہے. یہاں رک کر مطلب جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے کہ پروردگار مجھے ان میں شامل فرما. کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جا رہا ہے، ہمیں مطلب جو ہے آگے مطلب جو ہے بڑھ جانا نہیں ہے، بلکہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون پکار رہا ہے. میرا رب شہنشاہ کائنات مالک کل پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، اور مجھے پکار رہا ہے، اور مجھے ایمان لاوالا کہہ کر پکار رہا ہے. خوشی سے جھوم اٹھنے کا مقام ہے،
है, दिल के ज़बान से रब को जवाब देने की ज़रूरत है कि परवरदिगार तूने मुझे ईमान वाला कहकर पुकार रहा है, तुझे मेरे ईमान का एतराफ़ है, तो अगर मुझे ईमान वाला मान ले तो यही तो मेरे लिए मेराज है, यही तो मेरे मतलब जो है इंतहा तमन्ना है। मैंने सब कुछ हासिल मतलब जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ, परवरदिगार मुझे अता फरमा, तू मुझे ईमान वाला तस्लीम किया है तो अब मैं दिल और जान से ईमान का हर तकाजा पूरा करूंगा। ये वो अहद है जो इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू के नतीजे में इंसानों में पैदा होना चाहिए, और मैं हरगिज इन लोगों में से न रहूंगा जो आगे बढ़कर दावा तो करते हैं लेकिन अमल में बोदे होते हैं, यानी पीछे रहने वाले होते हैं। ये वो अज़्म है, ये वो अहद है जो इस इख्तिताम कुरान पर मुझे और आपको करने की जरूरत है। कहे मुनाफिकीन का किरदार मतलब जो है इस कुरान मजीद में पेश किया गया, इनके रज़ाइल अखलाक बयान किए गए। हाँ पर मैं बैठ के संजीदगी से अपने अखलाक और मामलात और शब रोज का जायजा लेने की जरूरत है। इदराक और एक एक रोग को दुश्मन की तरफ पकड़कर तहे तेह करने की कोशिश करने का एक अज़्म अहद है जो मुझे और आपको इस वक्त करने की जरूरत है। मुनाफिकीन का लफ्ज पढ़कर बेपरवाही से आगे न बढ़ना चाहिए, बल्कि कुरान मजीद के अंदर मुनाफिकीन का जो लफ्ज आया है बल्कि एक एक बुराई को रुक रुक कर मतलब जो है पढ़ने की जरूरत है। कुरान मजीद के अंदर बार बार मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ पैकरों में हक बातिल, नेकी और बदी, कुफ्र और इस्लाम और इखलास और निफाक, तौहीद और शिरक, इत्तबा और सरकशी, खुद शनासी और खुद फरामोशी, एहसान मंदी और नाशुक्री, खुदा शनासी और खुदा बेजारी, आखरत पसंदी और आखरत फरामोशी, रज़ाइल अखलाक और फजाइल अखलाक, हुस्न मामला और बद मामलगी और हसन हुस्न किरदार और बद किरदारी, पाकीज़गी और गंदगी, आला ज़र्फ़ी और रज़ा रज़ा लता और मतलब जो है दियानत दियानत और खयानत, इन्हीं अमाल और इक़दार का बाहमी टकराव और कशाकश और आवाज़िश मतलब जो है मुझे और आपको कुरान मजीद में नजर आती है। जब तक हम मतलब जो है सीनों में इसे धड़क जो दिल धड़क रहा है, इसे जब तक इस दिल में नहीं उतारेंगे, आंखों में दम है और मतलब जो है दिमाग में सोचने समझने की तवानाई है और जिसमें जिसमें तर्क इख्तियार की कुव्वत कुदरत है, हर हर कदम पर हर हर मोड़ पर हम मतलब जो है ईमान और इस्लाम की हमारे लिए आजमाइश है। इस अजील जंग में तसलसल के साथ ये जो जारी है रहती दुनिया तक जारी रहेगी। सामिन इकराम, हम मतलब जो है बराबर इम्तिहान गाह में हैं और हमको शऊर हो या न हो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और आलिमुल गैब शहादा बराबर हमारे बारे में सादर फरमा रहा है और हमारी तको को निगाह में रखकर मुख्तार कुल मतलब जो है हमारे लिए दिल को और चुटकी में अपने मतलब इल्म हिकमत के तहत बराबर इधर उधर फेर रहा है और खल्क के इनकलाबात हमारी जिंदगी के रुख और दिमाग पर असरअंदाज हो रहे हैं। वो उसका मुहासिबा इस वक्त कुरान के इख्तिताम पर मेरे और आपके लिए जरूरी है। सामिन इकराम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। सामिन इकराम, हम मतलब जो है तो हम तमाम लोगों ने कहा कि उस वक्त मौजूद वहाँ पे तमाम मतलब जो है सहाबा कराम मतलब जो है इस दुआ को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उस वक्त सबने कहा था कि ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान लाए और जो दीन आप लेकर आए इस पर हम ईमान लाए, क्या आपको हमारे बारे में भी खौफ है कि हम फिर जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, बिलाशुबा इंसानी कुलूब रहमान की उंगलियों में से दो उंगलियों में है, वो जिधर चाहता है इनको फेर देता है। सामिन इकराम, हर इंसान ईमान और इस्लाम का दावा करने वाला हर शख्स इस नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। इसके अफकार और जज्बात, आमाल और हरकत, शब व रोज की तकोदो के पेश नजर खुदा ताला के बारे में अपने फैसले सादिल फरमाता रहता है और ये फैसला इसके फिक्र और अमल के लिहाज से कुछ भी हो सकता है। इस नाजुक तरीन मुकाम पर होने का एहसास और शऊर रखने वाला क्या आसानी के साथ मुताले कुरान के दौरान में कहते हुए बेबाकाना आगे बढ़ सकता है कि फला आयत फला गुरु के बारे में और फला आयत फला मतलब जो है गुरु के बारे में और फला आयत फला गुरु का अंजाम बद मतलब जो है बयान किया गया है। सामने इकराम, फला आयत में यहूद नसार की बदउनवानियां हैं और फला जगह मतलब जो है कुछ मुशरिकीन के लिए मतलब जो है ये मतलब जो है हलाकत केज मंजर है। ये तमाम चीजें हमारे लिए भी हो सकती हैं, ये तमाम मतलब जो है चीजें हम भी मतलब उसके मुखातिब हो सकते हैं और हमारे लिए भी ये जायज आए मतलब जो है एहतसाब का मतलब जो है वक्त है। सामिल इकराम, दरअसल कुरान में जिस जिसका किरदार का जिक्र है और किरदार की जिस जिस खामी और बुराई या मतलब जो है अच्छाई और भलाई का तस्करा है, सामिल
सामने कराम किरदार भी और किरदार की ये बुराई और अच्छाई भी हर दौर में पाई जाती है और पाई जाती रहेगी। कोई किरदार या किरदार की कोई बुराई किसी दौर के साथ मुख्तस नहीं है। हर किरदार हर दौर में पाया जाता है और किरदार की हर बुराई हर दौर में पाई जाती है। इसी तरह के किरदार की हर भलाई हर दौर में पाई जाती है और आदमी दमे वापस मतलब जो है बराबर इम्तिहान गाह में होता है। इस तसव्वुर और यकीन के साथ कुरान का मुतालिया और कुरान पर गौर और फिक्र ही के जरिए से इंसान कुरान से मतलब जो है मफैजियाब मतलब जो है हो सकता है, हिदायत पा सकता है। और ऐसा मुतालिया ही से वो तवक्का की जा सकती है कि आदमी कुरान से वो नूर पा सकता है जिसके लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। सामईन इकराम, कुरान मजीद के लिए मुझे और आपको चंद अहद मतलब जो है करने की जरूरत है। अपने लिए मतलब जो है वो मतलब जो है अहदनामा तैयार करने की जरूरत है। वो अजाइम की जरूरत है। वो मतलब जो है शुजाअत की जरूरत है जो इन तमाम मतलब जो है आयत करीमा के पढ़ने के बाद मेरे और आपके दिलों के अंदर, मेरे और आपके नफ्स के अंदर क्या चीज मतलब जो है पैबस्त हो गई है और क्या चीज मुझे और आपको उभार रही है। ये वो वक्त है जो सोचना और एहतसाब करने का है। सामईन इकराम, इसके लिए मुझे और आपको मतलब जो है बैठ कर सोचना चाहिए। ये कुरान मजीद के एक किताब जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती है, मगर शर्त यह है कि हम इसे पढ़े, समझें और इस पर अमल करें। आज मैं अपने रब के सामने एक अहद मतलब जो है करती हूँ कि साथ मतलब जो है आगे बढ़े और इस मुकद्दस किताब के साथ अपनी जिंदगी के इस सफर को जो मतलब जो है हमने 30 दिन के मतलब जो है मुकम्मल इसके साथ हमने किया और इसमें हमने 27 डेज मतलब जो है अहकाम इलाही के सिलसिले में हमने तफसीलात देखी और बकिया मतलब जो है 30 दिनों के दरमियान में हमने मतलब जो है खुलासा कुरान मतलब जो है आपके सामने पेश करवाया, जिसके नतीजे में मतलब जो है तमाम मतलब जो है चीजें उसका एक एक गोशा उसके अंदर की एक एक चीज हमारे सामने खुलकर मतलब जो है बाज़ अंदाज में आई, जिस पर हमने वक्त भी लगाया। कहने वालों ने भी वक्त लगाया, सुनने वालों ने भी वक्त लगाया, बुलाने वालों ने भी वक्त लगाया। बहरहाल सब ने वक्त लगाकर इसको पढ़ने का मतलब जो है मामला किया। इस वक्त मतलब जो है जो उन्वान लेकर मैं आपके दरमियान हूं वो मेरा अहद सफर है, जिसके लिए मुझे और आपको आगे बढ़कर कुरान से मेरा अहद सफर क्या है इसको मतलब जो है पूरा करने की जरूरत है। सामईन इकराम, सबसे पहले मतलब जो है इस कुरान का मतलब जो है अहद ये है कि मैं मतलब जो है जो कुछ सुना है, जो कुछ मैंने इस पर पाया है, इस पर मैं मतलब जो है इसको मैं अपना साथी बनाऊंगी। ये वो पहला अहद है जो मुझे और आपको करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बनेगा। सामईन इकराम, यही वजह है कि हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत मतलब रखूंगा का जो इरादा है उसे करना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों हमें इसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जो कुरान से जुड़ा रहा वो कामयाबी के और तरक्कियों के दर खोलता चला गया और उसने मतलब जो है बर्रे आजम के बर्रे आजमों को उसने अपनी जमीन के पांव की धूल बनाकर रख दिया था। दूसरा जो अहद मुझे और आपको इस वक्त करने की जरूरत है वो ये है कि मैं कुरान मजीद की तिलावत को अपनी आदत मतलब जो है बनाऊंगी। यानी ये कुरान मजीद सिर्फ रमजान में नहीं खुलेगा, इस जुमा के दिन नहीं खुलेगा और ना ही मतलब जो है तावीज मतलब जो है बांधने के लिए या खस्मे खाने के लिए या इसको मतलब जो है ऊपर पकड़ कर नीचे मतलब जो है दुल्हन को गुजारने के लिए इस कुरान का इस्तेमाल नहीं, बल्कि क्योंकि ये कुरान मजीद को हमने देखा ये राह निजात है, ये रोड मैप है, ये मंशूर है, ये दस्तूर है। इसका अज़्म करिए और इरादा करिए कि हम मतलब जो है इसकी तिलावत को कभी बंद नहीं करेंगे, इसकी तिलावत बिला नागा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिर आयत नंबर 29 और 30 में इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें अता किया है इसमें से खर्च करते हैं, वो ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कभी खसारे में नहीं होगा। सामईन इकराम, इख्तिताम बिल खैर मतलब जो है हम चाहते हैं अपनी मौत के साथ और हम चाहते हैं कि मुनकिर नकिर के सही जवाबात दे दे, हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीदार हासिल करें, हम चाहते हैं कि अल्लाह के सामने मतलब जो है खड़े होकर नाम अमाल सीधे हाथ मिले। ये सिर्फ मतलब जो है ख्याली पलाव के नतीजे में हासिल नहीं होता, इसके लिए कोशिशों की जरूरत है, इसके लिए अजाइम की जरूरत है, इसके लिए अनथक मेहनत की जरूरत है, इसके लिए तसलसुल हरकत की जरूरत है। ये तमाम चीजें तभी जाकर मेरे और आपके लिए रहनुमा बनकर मेरे और आपके लिए निजात का जरिया बनते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दिल पाक होते तो तुम कुरान से कभी सैर नहीं होते। सामईन इकराम, इसी वजह से सहाबा कराम का जो रवैया हमें देखा जाता है वो कुरान मजीद में मतलब जो है गोता जन हुआ करते थे, इसकी एक आयत पर पढ़ते थे और कभी सैर नहीं होते थे, बल्कि इसे हर तरीके से मतलब जो है इसके अलग अलग दर को खोलने की कोशिशें करते थे। तीसरा, आइए हम अहद
करे कि मैं कुरान के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करके रहूँगी। जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने पढ़ा है इस रमज़ान के इस मतलब जो है सामने हमने जो कुरान मजीद को पढ़ा, इसको हम अपनी ज़िंदगी में इन अहकामात को ज़िंदगी में जारी करके मतलब जो है इसे अपने किरदार की मतलब जो है एक इनकलाबी है हकीकत के साथ हम मंजर आम पर आने की कोशिशें करेंगे। ये अहद करते हुए आगे बढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आपका अखलाक कुरान मजीद था और इसी बात को हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो वाक़ई कुरान पढ़ता है वो आखिरत को इबादत में गुजार वो अपनी रात को इबादत में गुजार देता है, दिन को अमल करता है और अपने किरदार में तब्दीली पैदा करता है। क्या ये रवैया मेरा और आपका है? क्या मैं और आप अज़्म करके उठेंगे कि मेरा और आपका किरदार इस रमज़ान की हद तक नहीं, यानी हम रमज़ानी नहीं बल्कि हम रहमानी हैं। ये मतलब जो है अज़्म, ये वो अहद मतलब जो है लेकर उठना है, तभी कहीं जाकर मेरे और आपके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हमने मतलब जो है इतना वक़्त लगाकर हमने जो इसका मुतालिया किया है, इसका सहरस मतलब जो है नतीजा सामने आ सकता है। एक और अहद की ज़रूरत है, वो ये है कि मैं कुरान को दूसरों तक पहुँचाऊँगा क्योंकि कुरान मजीद इंसानों को मतलब जो है पैगाम रसानी के साथ एक दूसरे को बताने की मतलब जो है तलक़ीन करता है। बल्लिगु अन्नी वलो आया का मतलब जो है तकाज़ा करता है और कुरान मजीद मतलब जो है इंसानों से तकाज़ा करता है कि तुम मतलब जो है एक दूसरे का यानी मोमिन मोमिन का आईना है। इस मिज़दाक़ में मतलब जो है ये कुरान मजीद को इंसानियत के दरमियान में इनके दिलों तक मतलब जो है पहुँचाने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। सामईन इकराम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरान पढ़ो और इसे दूसरों तक पहुँचाओ क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी मीरास है। सामईन इकराम, इस मीरास को लोगों तक पहुँचाना मेरा और आपका काम है। तो इस काम के लिए कुरान मजीद के अंदर हर मतलब जो है खुलासे के दरमियान में और हर अहकामात के दरमियान में जो अहकामात मुझे और आपको सुनाए गए वो तहसीर है, वो तबशीर है, वो इशाअत कुरान है। तो इसका तो पैगाम हक मुझे और आपको मतलब अदा करना है। तो क्या मैं और आप इन अज़ाइम के साथ इन पढ़ने के बाद हम इस अज़्म के साथ इस अहद के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे? सोचिए और अहद करके उठिए। और एक अहद की ज़रूरत है और वो ये है कि कुरान को मुश्किलात में अपना रहनुमा बनाऊँगा, यानी इधर-उधर बातिल मतलब जो है कुव्वतों की तरफ या तागूत की तरफ रहनुमाई नहीं हासिल करूँगा, बल्कि इससे मैं कुरान से हर चीज़ को मतलब हासिल करूँगा और अपने लिए रहनुमाई उसूल मतलब जो है फराहम करूँगा। सूरह तलाक 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाता है और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। सामईन इकराम, यहाँ रिज़्क का मतलब है वो रहनुमाई है जो इंसानों को अता की जाती है। कैसे रहनुमाई मिलती है? किसका लफ्ज़, किसका जुमला, किसका बुलावा और किसका किरदार मतलब जो है हमारी ज़िंदगियों में तग़य्युर लाएगा, ये हमें नहीं मालूम, मगर सिर्फ़ ये है कि इंसान की आँखों के पर्दे छट जाएँ, उसके कामातों के पर्दे छट जाएँ, दिल के ऊपर से लागू हुए हुए वो तमाम पर्दे हट जाएँ, अक़ल पर पड़े हुए पर्दे हट जाएँ और इंसान मतलब जो है अपनी तब्दीली का मतलब जो है अज़्म करके आगे बढ़े और सीखने का अज़्म करके आगे बढ़े और सोचे कि मैं मतलब जो है बदल कर रहूँगा। ये वो अज़ाइम हैं जो इंसानों को आगे बढ़कर सिरात मुस्तक़ीम की तरफ गामज़न होने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सामईन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी लाहक होती, मैं कुरान को खोलता और इसमें मेरी मुश्किल का हल मिल जाया करता था। ये वो अंदाज़ है जो मुझे और आपको इस कुरान मजीद से हासिल करना है। एक और मतलब जो है अहद करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और वो ये है कि मैं कुरान को हमेशा थामे रहूँगा। इसको सिर्फ़ रमज़ान के महीने में खोलने की ज़रूरत नहीं है या फिर मतलब जो है किनारे पर रहकर मतलब जो है बंदगी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मौका मिला मतलब जो है इसमें शिरकत होगी या मौका नहीं मिला तो मतलब जो है सिर्फ़ बहानाबाज़ी के साथ मतलब निकल जाऊँगा या वही तकाज़ा कि मतलब जो है वक़्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? शायर बड़े अच्छे अंदाज़ में दिल को खोल कर मतलब जो है इंसानियों के किरदार को सामने रखकर बयान करता है कि ये वो अंदाज़ है जो मुसलमानों ने अपनाया है। इसी वजह से माशरे के अंदर बिगड़ी हुई इस नैया के अंदर उनके लिए मतलब जो है राह निजात नहीं है। इस बिगड़े हुए माहौल के अंदर कोई इस्लाह मौजूद नहीं है, कोई हिदायत मौजूद नहीं है। इसके लिए अज़्म करने की ज़रूरत है। इस कुरान को थाम के हम आगे बढ़ेंगे। इस कुरान को मतलब जो है अपने गले में मतलब जो है बांधे रहेंगे और हमेशा मतलब जो है इसी के मुताबिक अपना फैसला करेंगे, इसी से मतलब जो है रहनुमाई हासिल करेंगे, इसी पर यकीन करेंगे और अल्लाह से अपने रब को मजबूत करेंगे। ये वो अज़ाइम है जो मुझे और आपको करने की ज़रूरत है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो कुरान को मजबूती से थाम लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है जो ज़मीन से आसमान तक जुड़ी हुई है, जो इसको थामेगा वो गुमराह न होगा।
सामईन इकराम, कुरान से जुड़े रहने के जो फ़वाइद इंसानों को मुयस्सर आते हैं वो ये है कि दुनिया में कामयाबी मुयस्सर आती है। कुरान हर अमल करने वाले कौमें हमेशा तरक्की करते रही हैं, और ये कुरान से जुड़े रहने के नतीजे में खबर में रोशनी मतलब मिल जाती है। हदीस में आया कि जो कुरान पढ़ता है इसके खबर नू मुनव्वर कर दी जाती है। सामईन इकराम, तीसरा फ़ायदा ये है कि क़यामत में शफ़ाअत भी इसी कुरान मजीद के ज़रिए से होती है। कुरान मजीद के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के हक़ में सिफ़ारिशी करेंगे। और चौथा फ़ायदा ये है कि दिलों को सुकून पहुँचाता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह राद 28 के लिए में कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सामईन इकराम, आइए हम सब मिलकर कुरान के साथ अहद करेंगे कि आज मैं कुरान के साथ एक पुख्ता अहद करने के अहद के साथ हम इस क्लास के इख्तिताम तक चलेंगे, जो 1 महीने की लगातार मेहनत मशक्क़त के बाद हम इख्तितामी पड़ाव में दाखिल हो गए हैं। ये अज़ाइम, ये अहद इस तरह हम करेंगे कि मैं इसे रोज़ाना पढ़ूंगी, मैं इसके तालीमात पर अमल करूंगी, मैं इसे दूसरों तक पहुंचाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगी, मैं कुरान को कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं और आप ये अहद करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले, इसमें गोता जन होने वाले, इस पर अमल पैरा होने वाले, दुनिया में इसे आम करने वाले मुझे और आपको बनाए, और हमारे लिए वो तमाम सिफात आलिया अता फरमाए जिसके ज़रिए से हम अल्लाह के खुशनुदी हासिल करने वाले और उसके महबूब बंदों में शुमार हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, और इन तमाम इसके साथ हम तमाम को जो सुन रहे हैं और जो बुला रहे हैं और जो कहने वाले हैं, इन सबको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।